پاکستان کرکٹ بورڈ نے محمد رضوان کو وائٹ بال ٹیم کا کپتان جبکہ سلمان آغا کو نائب کپتان مقرر کر دیا۔ چیئرمین محسن نقوی کہتے ہیں بابر اعظم نے اپنی مرضی سے کپتانی چھوڑی، ٹیم لڑ کر ہارے تو کوئی اعتراض نہیں۔ حافظ شہزاد علی کی رپورٹ۔ کافی اسٹیڈیم میں چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے دورہ آسٹریلیا اور زمبابوے کے لیے محمد رضوان کو کپتان اور سلمان علی آغا کو نائب کپتان مقرر کرنے کا باقاعدہ اعلان کیا اور امید ظاہر کی کہ رضوان کی قیادت میں قومی ٹیم کامیابیاں سمیٹے گی۔ زمان کو ڈراپ کیے جانے کے سوال پر محسن نقوی نے کہا کہ پیٹ اور فٹنس مسائل کی بنا پر انہیں ڈراپ کیا گیا ہے۔ نامزد کپتان محمد رضوان نے کہا کہ ان کا گروپ پوری ٹیم ہے اور 15 کھلاڑی ہی کپتان ہیں، جبکہ نائب کپتان سلمان علی آغا نے آسٹریلیا کی سیریز کو مشکل قرار دیتے ہوئے کہا کہ اچھے نتائج دینے کی کوشش کریں گے۔ کنوینئر عاقب جاوید نے کہا کہ آسٹریلیا کو اس کی سرزمین پر ہرانے کا گر ہے کہ حریف ٹیم اور کنڈیشنز کے مطابق حکمت عملی بنائیں۔ قومی اسکواڈ 2 گروپس میں 28 اور 29 اکتوبر کو میلبرن کے لیے اڑان بھرے گا۔ حافظ شہباز علی۔ اور دوسری جانب ٹیکسٹائل برآمدات 13% اضافے سے $1.64 بلین تک پہنچ گئیں۔ 2023 میں ایکسپورٹ $1.46 بلین تھی۔ صنعتکار میاں طارق کہتے ہیں برآمدات میں اضافہ حکومتی پالیسیوں نہیں ذاتی کوششوں سے ہوا۔ بنگلہ دیش کا سیاسی عدم استحکام بھی پاکستان کی ایکسپورٹ بڑھنے کا سبب بنا۔ جو ایکسپورٹر ہیں ان کی اپنی کوششیں اور کاوشیں ہیں کہ یہ جو ایگزیبیشن دوسرے ملکوں میں جا کر لگاتے ہیں، جو پاکستان میں ایگزیبیشنز لگتی ہیں، جیسے ابھی کراچی میں ٹیکسپو، ادھر لاہور میں جو ہے ایکسپو وہ لگی ہوئی ہے، تو اسی وجہ سے جو ہے ایکسپورٹر آتے ہیں۔ میاں طارق نے مزید کہا سال کے آخر میں بے تحاشا آرڈرز موجود ہیں، غیر معمولی ایکسپورٹ کی وجہ سے بھی رواں مالی سال زیادہ آرڈر ملے۔ اگر دیکھا جائے تو ہماری 2022 میں جو ایکسپورٹ تھی اس کی نسبت 2023 میں بہت ڈکلائن آیا تھا۔ اب جو ڈکلائن سے کمپیریزن کر رہے ہیں تو 2022 تک تو ابھی بھی نہیں پہنچی، تو یہ اس کو کریڈٹ لینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ان کی تھوڑی بہت کوششیں ہیں، جیسے صرف ایک انٹرسٹ ریٹ ہے جو 2-3% کم ہوا ہے، نہ بجلی سستی ہوئی ہے، نہ لوکل مارکیٹ میں کوئی یان سستا ہوا ہے، کوئی چیز یہاں پہ لوکل مارکیٹ میں سستی نہیں ہوئی۔ ایکسپورٹرز کہتے ہیں بجلی سستی ہوئی نہ ریفنڈز ملے، برآمدات بڑھنے کا کریڈٹ حکومت کو کیسے دیا جا سکتا ہے؟ کیمرامین ٹیم کے ساتھ شراز بٹ، سٹی 41 فیصل آباد۔ فیصل آباد میں موسمی سبزیوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ فیصل آباد میں مہنگائی کا جن بے قابو، سبزیوں کی قیمتوں میں ایک ہفتے کے دوران نمایاں اضافہ، مہنگائی کے مارے گاہکوں کی ریٹ لسٹ سن کے چیخیں نکل گئیں۔ آلو کی قیمت 80 سے بڑھ کر 85 روپے کلو ہو گئی، پیاز کے نرخ ریٹ لسٹ پر 124 سے کم ہو کر 117 روپے پر آ گئے، مارکیٹ میں 140 روپے کلو فروخت۔ سرکاری ریٹ لسٹ پر ٹماٹر 110 روپے کلو مقرر، مگر اوپن مارکیٹ میں 130 روپے کلو دستیاب۔ لہسن دیسی 580 سے بڑھ کر 600 روپے کلو تک پہنچ چکا۔ سمجھ کچھ نہیں آ رہی، کیا پکانا ہے کیا کھانا ہے۔ اتوار کا دن ہے، ہم سبزی لینے نکلے ہیں، مطلب جس روڈ پر بھی چلے جاتے ہیں وہاں مہنگی سے مہنگی سبزی مل رہی ہے۔ ادھر تک کہ وہ آلو مولی گاجر کا بھی ریٹ جو ہے نا پہلے سے زیادہ ہے۔ اروی کی قیمت گزشتہ ہفتے 125 روپے تھی، اب 135 روپے کلو ہو چکی۔ مٹر کی سرکاری قیمت 280 سے بڑھ کر 325 روپے تک جا پہنچی، مارکیٹ میں 450 روپے کلو فروخت ہونے لگے۔ گاہکوں کا کہنا ہے کہ مہنگی سبزیوں کے آگے ہماری قوت خرید جواب دے چکی۔ ہماری تو صرف تنہائی کم ہوئی ہے، اس کے بعد تو سبزی اور دال چینی سب کچھ تو مہنگا ہے۔ شملہ مرچ سرکاری نرخ نامے پر 300 سے 350 پر جا پہنچی، مارکیٹ میں 480 روپے کلو دستیاب ہے۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ شراز بٹ، سٹی 41 فیصل آباد۔ فیصل آباد ڈویژن میں مہنگائی مافیا کو نکیل ڈالنا انتظامیہ کے بس سے باہر ہو گیا۔ بھنگ کے آڑتیوں نے آستینیں چڑھا لیں، موسمی سبزیوں کی بڑھتی قیمتوں نے خریداروں کے ہوش اڑا دیے۔ گزشتہ اور رواں ہفتے میں سبزیوں کی قیمت میں زمین آسمان کا فرق، آلو 115 روپے سے 120 روپے پر پہنچ گئے، 130 روپے کلو بکنے لگے۔ ٹماٹر کی سرکاری قیمت 115 روپے مگر مارکیٹ میں 125 روپے کلو فروخت۔ ادرک کی قیمت میں اضافہ 580 سے 730 روپے کلو ہو گئی، لہسن 580 سے کم ہو کر 460 روپے پر آ گیا۔ نوٹ کے باسیوں پر رواں ہفتہ گزشتہ سے بھی بھاری
भारी, शहरियों के लिए मुश्किल हो गया तैयार करना तरकारी। सब्जी और सब्ज मसालों ने शहरियों को तारे दिखा दिए। दुकानदारों ने सरकारी रेट लिस्टों को मजाक बनाकर रख दिया। आलू और टमाटर की कीमतें 10 रुपए बढ़ गयी। 40 रुपए इजाफे के साथ लहसुन की सरकारी कीमत 590 रुपए, जबकि मार्केट में 650 रुपए फी किलो के हिसाब से बिकता रहा। एक हफ्ते में फलियां 5, करेले 10, टिंडे 20, सब्ज मिर्च 30, शिमला मिर्च 30 और गोभी 15 रुपए किलो तक महंगी हो गई। टैक्सिंग में भी पूरा हफ्ता सब्जियों की कीमतें उतार चढ़ाव का शिकार रहीं। सब्ज मसाला जात भी हांडी पकाने से पहले ही पसीना छुड़ाते हैं। दुकानदारों और फड़ियों ने रेट लिस्टें रद्दी में फेंक दी, मुंह मांगे दाम लेते रहे। टमाटर 2, लहसुन 40, शिमला मिर्च की कीमत में 50 रुपए का बड़ा इजाफा। शिमला मिर्च 400, अदरक 740, लहसुन 590 रुपए किलो बिकता रहा। सेब 10 रुपए महंगा होकर 230 और अंगूर 20 रुपए कमी के बाद 380 रुपए किलो पर आ गए। सब्जियों और सब्ज मसाला जात की भी कीमतें आसमान से बातें करने लगीं। बाद में मुनाफाखोरों ने सरकारी रेट लिस्ट हवा में उड़ा दी। गिरा फरोश आवाम को दोनों हाथों से लूटने लगे। आलू की सरकारी कीमत 87 जबकि बाजार में 160 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहे हैं। प्याज के निर्ख 118 लेकिन बाजार में 140 रुपए किलो बिकने लगा। अदरक की कीमत 730, मुनाफाखोर 1000 रुपए किलो बेचने लगे। सब्ज मिर्च की कीमत 195, बाजार में 280। फूल गोभी के निर्ख 125 जबकि बाजार में 150 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है। करेले की कीमत 130 रुपए किलो मुकर्रर जबकि मुनाफाखोर 150 रुपए किलो बेचने लगे। तो में सेब की कीमत 225, बाजार में 300 रुपए किलो बिकने लगे। केले के निरख 125 मगर मार्केट में 140 रुपए दर्जन फरोख्त। जापानी फल की कीमत 180 मगर बाजार में 200 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। शहरियों का मसनूई महंगाई पर शदीद परेशानी का इजहार, कहते हैं रेट लिस्ट पर दाम कुछ और मार्केट में कुछ और होते हैं। जो रेट इन्होंने लिखे हुए हैं या जो हुकूमत ने दिए हुए या जिनको हम नेट पे या आपके प्रोग्राम के जरिए चेक करते हैं वो 41 पे रेट आते हैं, लेकिन यहाँ रेट वो नहीं है। लिखा कुछ है और लगाते रेट कुछ है। और इससे ज़्यादा जो ख़ुसूसन गोश्त वाले हमारे जितने भी आपके मिलत रोड में बल्कि फैसलाबाद में किसी भी जगह उन्होंने 2-3 किस्म के रेट लिखे हैं जी। शहरियों ने मसनूई महंगाई के खात्मे के लिए जिले इंतजामिया से रेट लिस्ट पर अमल दरामद का मुतालबा किया है। कैमरामैन राना इदरीस के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। सस्ते इतवार बाजारों में भी महंगाई नाचने लगी। सर्दियों के पुराने कपड़ों ने नए कपड़ों का रेट धो डाला। भारी कीमतों ने शहरियों को निचोड़ के रख दिया। खरीदार फट पड़े। कहते हैं हुक्मरान बढ़ती महंगाई को लगाम डाले। फसी नकवी की रिपोर्ट। हर बाजार में सर्दियों के मलबूसात आ गए, साथ में रेट भी ऐसे कि कपड़ों को हाथ ना लगे। शहरियों का कहना था कि बच्चों के लिए कपड़े खरीदना मुश्किल हो गया। जिस कपड़े को हाथ लगाओ 1000 रुपए से ऊपर ही रेट बताया जाता है। महंगाई का तो कोई हिसाब ही नहीं रह गया। कोई चीज़ जी कोई हिसाब ही नहीं रह गया। जी चीज़ पहले 600 आती सी, हुण 1200 रुपए च आउण लई आ। ते गाहक बहुत कम आ, लैण वाले भी इदां ही आ, फिरदे ज़्यादा वा, खरीदारी कम करते हैं। शहरियों का मजीद कहना था कि सस्ते इतवार बाजार भी अब महंगे लगते हैं। पहले जब बाजार आते थे तो रश हुआ करता था, लोग खरीदारी के लिए आते थे, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। अवाम बिजली गैस के बिल अदा करके थक चुके हैं। दुकानदार भी इदां ही आ, सारा दिन उडीकते रहंदे गाहकां नूं। गाहक हुण कित्थों लियाउण पैसा, इन्ना पैसा होवे ते गाहक आवे। महंगाई बहुत ज़्यादा होई आ, मजीद महंगाई ते कंट्रोल करना चाहिदा वा। बिजली बिल ऐसे जी चीज़ां जिहड़ियां ना कम करन, फिर आवाम नूं सहूलत होवे। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि बढ़ती महंगाई को लगाम डाली जाए ताकि अवाम सुख का सांस ले सके। कैमरामैन मलिक इरफान के साथ फसी नकवी, सिटी 41 फैसलाबाद। चन्योट में टीचर्स नीड असेसमेंट पेपर्स का सिलसिला जारी। पंजाब टीचर्स अलायंस और ग्रैंड टीचर्स अलायंस का दूसरे रोज भी मुकम्मल बाइकआउट। जिला का कोई उस्ताद टेस्ट नहीं देगा। असातिज़ा तंजीमें एक पेज पर हैं। हड़तालियों का हुकूमत को 2 टोक पैगाम। बाबर मनीर की रिपोर्ट। टीचर यूनियन मोहम्मद नवाज भुट्टा का कहना था कि छिन्योट कल जिला भर में 600 असासा में से सिर्फ एक फीमेल टीचर ने टीएनए टेस्ट दिया। आज दूसरे रोज भी टीएनए टेस्ट का मुकम्मल बाइकाट होगा। टीचर्स यूनियन नुमाइंदे नवाज भुट्टा का मजीद कहना था कि हुकूमत समझती है सिर्फ टीचर्स यूनियन पेपर नहीं दे रही, जिला का कोई उस्ताद भी टेस्ट नहीं देगा। जीटीए की तरफ से हम मुकम्मल इसका बाइकाट करते हैं। जैसे कि कल वजीर तलीम ने और हुकूमत बाला में जो लोग बैठे हैं उन्होंने देख लिया कि हमने मुकम्मल इसका बाइकाट करके दिखाया। वो कहते हैं कि यूनियन वाले 10% लोग हैं, जबकि हमने साबित कर दिया कि सभी उस्ताद हमारे साथ हैं और हमारे हक में दें लीव एनकैशमेंट और दीगर मसैल। और टीएनए
टेस्ट का मुकम्मल बाइकाट रखेंगे आखिरी दिन तक। सभी टीचर्स यूनियन एक पेज पर हैं। तमाम असातिज़ा ने आज दूसरे रोज भी टीचर्स नीड असेसमेंट टेस्ट का भी मुकम्मल तौर पर बाइकाट किया है। असातिज़ा तंजीमों का कहना था कि हुकूमत स्कूलों की निजकारी बंद करे, लीव इन कैशमेंट 17A कानून बहाल करने समेत असातिज़ा को तरक्कियां दी जाएं। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। फैसलाबाद में फायरिंग के मुख्तलिफ 3 वाक़यात में 4 अफराद जख्मी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद में फायरिंग के 3 वाकयात में 4 अफराद जख्मी हो गए। इस्लामपुरा का अफसर अपनी बकाया रकम लेने वहाब के पास गया। वहाब के 3 भाइयों ने अफसल को गोली मार दी। चक 208 में 2 सिक्योरिटी गार्ड्स के मबैन झगड़ा हुआ। अजमल ने साथी असद को गोली मारकर जख्मी कर दिया। करतारे वाला में शहरी समरान की हमसाया जमील ने गोली मार दी। फैसलाबाद के थाना गुलबर्ग में फर्नीचर शोरूम पर डकैती की फुटेज सिटी 41 ने हासिल कर ली। राना इशफाक के शोरूम पर कार सवार डाकू ताले तोड़कर दाखिल हुए थे। फुटेज में डाकुओं को लूटमार करते देखा जा सकता है। डिस्कोर्ट में जेब तराश शहरियों के हत्थे चढ़ गया। जेब तराश से 1 2 नहीं 18 ATM कार्ड बरामद। शहरियों ने पहले दिल खोलकर जेब तराश की दुर्गत बनाई और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। चिन्योट में SHO थाना भवाना इंस्पेक्टर एजाज इमरान की टीम की हमला कार्रवाई। डकैती के 2 मुकदमे में मतलूब 2 इश्तिहारी और 3 रुकनी चोर गैंग सरगुना समेत गिरफ्तार कर लिए। कब्जे से 5 लाख मालियत का माल मसरूका, इन्वर्टर, बैटरी, केबल व नकदी बरामद। पीर महल के चक 680 में तशद्दुद और वीडियो वायरल होने का मामला। पुलिस ने 2 अलग अलग मुकदमे दर्ज कर लिए। तशद्दुद का शिकार उमैर के खिलाफ ज्यादती का मुकदमा दर्ज कर दिया। उमैर को तशद्दुद बनाने वाले परवेज और माजिद के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज। फैसलाबाद समेत पंजाब भर में पेट्रोलिंग पुलिस की आमदन के ऑडिट का फैसला किया गया है। अब हुकूमत ने फैसलाबाद समेत सूबा भर में पेट्रोलिंग पुलिस की आमदन का ऑडिट करने का फैसला कर लिया। ऑडिट के लिए 3 रुकनी कमेटी भी तश्कील दी गई। ऑडिट रोड सेफ्टी ट्रेनिंग फीस और ड्राइविंग स्कूलों की आमदन का कराया जाएगा। फैसलाबाद डिवीजन में रोड सेफ्टी ट्रेनिंग फीस की मद में पेट्रोलिंग पुलिस को 1 साल के दौरान 25,56,000 रुपए की आमदन हुई। पेट्रोलिंग पुलिस ने ड्राइविंग स्कूल से 1 साल में 13,92,000 रुपए कमाई की। कैमरामैन इशफाक बुखारी के साथ तैयब मकबूल, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद के पार्क उजड़ने लगे। PHA अफसरों और अमले ने सिर्फ वेलियां खाने को नौकरी का मकसद बना लिया। फैसलाबाद ने शहर के पार्कों की हालत न सुधारने की ठान ली। शहर के मकबूल तरीन जिनाह बाग पार्क में कई माह से झूले टूट फूट का शिकार। बाज जुज़वी खराब तो बाज मुकम्मल तौर पर जवाब दे गए। PHA हुकाम ने अरसा दराज से झूलों की मुरम्मत पर तवज्जो देना मुनासिब न समझा। साथ जिनाह बाग आए हुए एक शहरी का कहना था कि वो हफ्ते में 1 बार बच्चों के साथ जिनाह बाग जरूर आते हैं। बच्चे झूलों की खातिर ही पार्क में आते हैं, लेकिन बाग में टूटे झूले हादसात का बाइस बन सकते हैं, जिसकी वजह से वालिदैन परेशान रहते हैं। बिल्कुल, हमारा तकरीबन वीकेंड यहाँ पे गुजरता है मोस्टली, तो हमें हर दफ़ा यही सामना करना पड़ता है कि यहाँ पे सफाई सुथराई का कोई इंतज़ाम नहीं है और स्पेशल झूले टूटे हुए हैं, जिसकी वजह से बच्चों को चोट लगने के खतरात होते हैं। लेकिन अभी ये है कि हमारे पास करीबी यही पार्क मौजूद है, तो हमें यहाँ पे आना हमारी मजबूरी है। बच्चे आपको पता है घरों में अपसेट हो जाते हैं। जिनाह बाग का शुमार फैसलाबाद की पहचान समझे जाने वाले अहम तफरीही मकामात में होता है। PHA पार्क की देखभाल पर खुसूसी तवज्जो दे। कैमरामैन इशफाक बुखारी के साथ मोहम्मद कामरान सईद, सिटी 41 फैसलाबाद। जंग का सबसे बड़ा अस्पताल बीमारियां बांटने लगा। मरीजों के साथ लायकीन भी बीमार पड़ने लगे। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल की इंतजामिया ने नाअहली की अमली मिसाल कायम कर दी। अस्पताल में सफाई के नाकिस इंतजामात मरीजों और लवाहिकीन के लिए दोहरी अजियत का सबब बन गए। मेडिकल सर्जरी समेत दीगर वार्ड से मुल्हिका वाशरूम में सफाई की सूरत हाल इंतहाई अबतर हो गई। वाशरूम में हैंड सैनिटाइजर या साबुन तक की सहूलत मैसर नहीं। शहरियों का कहना था कि इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। कोई सहूलत नहीं, सारी पैंपर नाले नीचे सिटे ना चक्कर नाला गल ना बात साबन ही कोई शह नहीं हैगी। तो मतलब बहुत स्मैल बड़ी आती, रात सो नहीं सकता, मतलब बह नहीं सकता। अस्पताल इंतजामिया को कोसते हुए शहरियों का मजीद कहना था कि वाशरूम की सफाई तो दूर की बात, गंदे पानी की निकासी का मुनासिब बंदोबस्त तक नहीं। अस्पताल से सेहत की बजाय बीमारियां लेकर जा रहे हैं। पानी है कोई ना, टूटियां बंद हैं, साबुन इत्थे कोई नहीं, ते इत्थे ना कोई सोना वाला ना कोई पूछने वाला। शहरियों ने हुकामे वाला से नोटिस लेकर अस्पताल की सफाई को यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद अरबाब के साथ वसीम अजीज, सिटी 41 जंग। आपको बताएं कि अपनी जाती गाड़ी आप पाकिस्तान भी ला सकते हैं। मुल्क भर की सैर करें, मगर पहले गाड़ी की आर्जी बैंक गारंटी भी जमा करवाएं।
ار کو ملک میں سیاحت کے فروغ کے لیے عملی اقدامات کا خیال آ ہی گیا۔ محکمہ کسٹمز نے غیر ملکی سیاحوں اور اوورسیز پاکستانیوں کو بڑا ریلیف دے دیا۔ پاکستان میں سیاحت کے لیے آنے والے افراد بغیر کسی کسٹم ڈیوٹی کے عارضی بنیادوں پر ذاتی گاڑی امپورٹ کر سکیں گے۔ گاڑی کی بینک گارنٹی جمع کروانا ہوگی، ملکیت کسی کے نام پر ٹرانسفر نہیں ہو سکے گی۔ متعلقہ بینک کو گاڑی کی مالیت کے برابر بینک گارنٹی بھی جمع کروانا ہوگی۔ حکام کے مطابق ٹیکس اور ڈیوٹی میں ریلیف کا مقصد ملک میں سیر و سیاحت کو فروغ دینا ہے۔ کیمرامین محمد جنید کے ہمراہ عمیر عظمت، سٹی 41 فیصل آباد۔ 5 سال سے کم عمر بچوں کے روشن مستقبل کی نوید ڈویژن بھر میں صبح سے انسداد پولیو مہم شروع۔ جنگ میں صبح سے 5 روزہ پولیو مہم کا آغاز ہوگا۔ ضلع بھر میں محکمہ صحت کی 2343 ٹیمیں پولیو مہم میں حصہ لیں گی، جس میں گھر گھر جا کر 5,81,758 بچوں کو پولیو ویکسین پلائی جائے گی۔ محکمہ صحت کے مطابق پولیو کے 2 قطرے عمر بھر کی معذوری سے محفوظ رکھتے ہیں۔ ٹوبا ٹیکسنگ میں 5 روزہ انسداد پولیو مہم کے لیے تیاریاں مکمل۔ ضلع بھر میں 4,33,838 بچوں کو 1,916 موبائل ٹیمیں پولیو کے قطرے پلائیں گی۔ 106 فکس جبکہ 49 ٹرانزٹ ٹیمیں پولیو کے حفاظتی قطرے پلائیں گی۔ چنیوٹ میں بھی پولیو مہم کے لیے انتظامات مکمل۔ محکمہ صحت حکام کا کہنا تھا کہ ضلع میں 5 سال سے کم عمر 2,97,122 بچوں کو 1,467 پولیو ٹیمیں حفاظتی قطرے پلائیں گی۔ جناوالا میں یونین کونسل مانیٹرنگ افیسر عابد نظامی نے بچوں کو پولیو قطرے پلا کر پولیو مہم کا آغاز کر دیا۔ بس اڈوں پر بھی بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے۔ عابد نظامی کا کہنا تھا کہ والدین پولیو ٹیموں کے ساتھ بھرپور تعاون کریں۔